Hello children, how are you all? I hope you all are doing well, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work from the video. Children, once again, I welcome you all to class 3 computers. Children, as you can see on the screen, I have opened chapter 6, that is WordPad. In the previous video, we had started WordPad and we were doing WordPad. So children, till now we have understood what is WordPad and also we learned how to start WordPad. Now today we are going to read the different features of the WordPad window. आज हम वर्डपैड विंडो के बारे में पढ़ेंगे और ऑनलाइन क्लास में भी हमने एक बार वर्डपैड विंडो को स्क्रीन शेयर करके पढ़ा था और समझा था. So let us start. So children, till now we have understood that WordPad is a program which is used for typing text. And children, as you know, in the previous video also we had studied about a program called Notepad, which was same as WordPad, but WordPad has some more feature in addition to the Notepad. तो Notepad की तरह ये भी है, ये भी टेक्स्ट एडिटर है और टेक्स्ट टाइप करने के लिए काम आता है और नोटपैड में भी हम टेक्स्ट टाइप करते थे. लेकिन इन वर्डपैड चिल्ड्रन वी हैव सम मोर फीचर्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन मेक योर राइटिंग और यू कैन मेक योर टेक्स्ट more beautiful and attractive. So children, you must have seen in different printed things like printed form, in printed pages of books or card or greeting cards, or you can say marriage wedding cards. So all these cards have different types of fonts and the fonts are written in very beautiful and attractive way or the manner. So children, how we can make our text attractive and beautiful is only by use of the different types of softwares. So and some of the feature are in WordPad also. So in the WordPad, in addition to typing, we can make our text look beautiful and attractive also. हम उसे अपने text को beautiful भी बना सकते हैं और attractive भी बना सकते हैं. इसीलिए नोटपैड के अलावा हम WordPad को भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम आगे भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे चिल्ड्रन, all these software, that too application software, are some in one or the other way better than the previous one. So as I told you कि जब हमने नोटपैड पढ़ा था तो I had told you we are learning notepad only because as we are beginners and it is the simplest program in which we can type text. अब क्योंकि हमको नोटपैड समझ में आ गया तो हम उसे थोड़ा बेटर वाला वर्जन पढ़ेंगे, वो है वर्डपैड. वर्डपैड में हम लिख भी सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं. So we can type as well as we can make it write in different manners or different styles. तो इसलिए हम WordPad को prefer करते हैं. So here children, let us move further into the chapter. So WordPad is a program in which we can write text and we can make our text look beautiful and attractive. As you can see here children, बुक में भी हमारे लिखा हुआ है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम ब्यूटीफुल अपीयर करा सकते हैं या अट्रैक्टिव करा सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन एडिशन टू द टाइपिंग टेक्स्ट. टाइपिंग टेक्स्ट के एडिशन में हम अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. यही हमें इस वर्डपैड प्रोग्राम में समझना है. तो वर्डपैड is an application program or application software in which we can type the text as well as we can make it look beautiful also. So children, WordPad समझ में आ गया and we have also understood how to, नहीं हमने पढ़ा नहीं था, हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कि how to start WordPad. So आपको समझ में आ गया होगा. Let us revise. तो यहाँ पे children you can see, सबसे पहले this is you have understood how to start a computer. You all know how to start a computer. After starting the computer, you will click on the start button. The first step which you have to follow is click on the start button. So firstly, you will click on the start button. जैसे ही आप start button पे click करोगे, you will have a program menu. In the program menu, you will have all programs at the bottom of that menu. तो उसमें पूरे प्रोग्राम्स नहीं होते. जब हम ऑल प्रोग्राम करेंगे तो हमें पूरे प्रोग्राम्स हमारे सामने अपीयर होंगे. अ लिस्ट ऑफ
programs appear in front of us on the screen. So here we have a list of program that appears in front of us, and in that program you will search for accessories. When you get the accessories, you will click on accessories, and when you click on accessories children, you will have another menu that is called sub menu. क्योंकि एसेसरीज़ के अंदर जो एक और लिस्ट है, यानी कि किसी भी मेन मेन्यू के अंदर जो लिस्ट होता है उसको हम सब मेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पे सब मेन्यू आपके पास सामने अपीयर होगा। फ्रॉम द सब मेन्यू यू हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स चिल्ड्रन। नोटपैड हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है, पेंट हो सकता है, उनमें से एक होगा वर्डपैड। उसके अलावा जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर में वो सारे प्रोग्राम्स आपको शो करेगा। तो फ्रॉम दैट चिल्ड्रन व्हाट विल यू डू, यू विल click on WordPad because here we are going to learn about WordPad. तो आप WordPad पे click करोगे। When you click on WordPad, there will be a window in front of you. As you can see here children, this is a window which will appear in front of you. इस तरह के ऐसा कुछ विंडो दिखेगा जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी दिखाया था और अभी तक आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बहुत सारे फीचर्स मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था। एंड हियर इज़ द विंडो चिल्ड्रन। अब इस विंडो में एज यू नो सबसे ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट लाइन होती है या स्ट्रिप होती है उसको वी कॉल इट एज टाइटल बार। उसको हम टाइटल बार कहते हैं। यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, जो ये रेड और मरून यू कैन से ये वाला जो स्ट्रिप है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास जो भी प्रोग्राम हम जिसमें काम कर रहे होते हैं या जो भी हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसके ऊपर अगर हमने उसको सेव किया होता है तो उसके ऊपर उस प्रोग्राम का नाम होता है जिस नाम से हमने उसको सेव किया होता है। और अगर हमने सेव नहीं किया है, अभी हम शुरू कर रहे हैं, नया डॉक्यूमेंट खोला हुआ, तो उस पर यहाँ पे एक बार फिर आपको अनटाइटल्ड बार दिखाई देगा। और अदर देन दिस यू विल हैव क्विक एक्सेस बटन। आपके पास शुरू में यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन होगा जहाँ पे अंडू होता है, रीडू होता है और वहाँ से हम इजीली अपने अंडू रीडू को ये बटन्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्विक एक्सेस बटन कहते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन देयर इज़ अनदर बार। इसके जस्ट बिलो जो बार होता है उसको हम कहते हैं, हम इसको वर्डपैड बटन कह सकते हैं या फिर हम इसको फाइल बटन भी कहते हैं। मतलब फाइल जैसा कि आपके बुक में दिया हो, यू कैन सी हियर एंड वी हैड डिस्कस्ड ऑल्सो, ये दीज आर द मॉडिफाइड वन। पहले ये सारी चीज़ें इस नाम से नहीं जानी जाती थी। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम किस बटन को क्या कहते हैं। तो चिल्ड्रन हियर आर द 3 बटन्स। ये जो 3 बटन्स है इसमें सबसे पहले हमारे पास है फाइल। फर्स्ट इज़ फाइल, देन वी हैव होम, दूसरा होम होता है और थर्ड इज़ व्यू। तो जो भी हम कर रहे होते हैं उसको करने के लिए हमें नया विंडो खोलना हो या पुराना विंडो खोलना हो या पुराना प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट खोलना हो या फिर हमें नए को सेव करना है, सेव एज़ करना है। फर्स्ट टाइम सेव करना है तो हम सेव एज़ करते हैं, सेकेंड टाइम या बार बार सेव करना है तो हम उसे सेव करते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ये सारे मेनू हमको फाइल में होता है। तो इस फाइल को हम क्या कहते हैं, इस वाले बटन को हम कहते हैं, पहले इसको मेनू बार हम कहते थे लेकिन अभी हम इसको कहते हैं वर्डपैड बटन या फिर फाइल टैब कहेंगे हम इसको। उसके बाद वाले को हम होम टैब कहेंगे, उसके बाद व्यू है हम उसको व्यू टैब कहेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट बटन्स प्रेजेंट ऑन द सेकेंड रिबन और द स्ट्रिप। दूसरा जो स्ट्रिप हमारे पास है उसके अंदर ये 3 बटन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 और होते हैं। 3 और में चिल्ड्रन सबसे पहले माइनस का निशान होता है, यानी कि आपका विंडो एकदम मिनिमाइज होकर के टास्क बार में लिमिट कर जाता है। मतलब कि आपका विंडो सिर्फ टास्क बार में ही दिखाई देगा। आप यहाँ पे अगर माइनस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो 3 बटन है चिल्ड्रन, फर्स्ट इज़ माइनस। यहाँ पे सबसे पहला है माइनस। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस माइनस चिल्ड्रन, योर प्रोग्राम विंडो विल बी मिनिमाइज्ड टू टास्क बार। वो मिनिमाइज होकर के टास्क बार पे चला जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, एक छोटा विंडो और एक फुल स्क्रीन विंडो। तो अगर छोटा विंडो हमको चाहिए तो अगर हमारा छोटा विंडो होता है तो बॉक्स इस तरह का होता है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है। और अगर फुल स्क्रीन होता है तो हमारे पास डबल बॉक्स होता है, सेकेंड वाला डबल बॉक्स होता है। फुल स्क्रीन करने के लिए हमारे पास डबल बॉक्स होता है। जब हम डबल बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो वी हैव फुल स्क्रीन ऑन आवर full window on our screen. And then last one is cross button children. Cross button is used to exit the program. If you want to quit from the program, if you want to close the program, और विंडो आप इस विंडो को बंद करना चाह रहे हो या इस विंडो से क्विट करना चाह रहे हो, एग्जिट करना चाह रहे हो, तो यू विल क्लिक ऑन
क्रॉस बटन। तो 3 बटन्स है चिल्ड्रन, यहाँ पे 3 बटन्स का यूज यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू डोंट वांट योर विंडो टू बी शोन ऑन द या डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन, यू विल क्लिक ऑन माइनस। आपका प्रोग्राम तो चल रहा होगा बैकग्राउंड में, आपका प्रोग्राम इज ओपन, योर विंडो इज ओपन, आपका वर्ल्ड पैड का विंडो खुला हुआ है, लेकिन वो आपके टास्क बार पे ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उसके बगल में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। जो विंडो है आप इसको छोटा भी कर सकते हो और फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अगर आपने छोटा किया होता है तो आपके यहाँ पे सिंगल बॉक्स होता है। सिंगल बॉक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका जब छोटा स्क्रीन होता है तो आपका सिंगल बॉक्स होगा, यानी कि अभी आपको सिंगल चाहिए, यानी कि आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। और जब फुल स्क्रीन होता है तो उस पर डबल बॉक्स बना होता है, उस पर क्लिक करने पे वो छोटी विंडो हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और उसके बाद बीच का भी एक विंडो होता है। तो इस तरह से आप इसको छोटा, बड़ा या एकदम ख़त्म भी कर सकते हो। ख़त्म इन द सेंस कि यू कैन लिमिट इट टू द टास्क बार, सिर्फ वो दिखाई देगा कि खुला हुआ है विंडो, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करेगा। और लास्ट वन इज टू क्विट फ्रॉम द प्रोग्राम और द क्विट फ्रॉम द विंडो या क्लोज द विंडो। उसके बाद चिल्ड्रन ये हमारा हो गया टाइटल बार। इसके अलावा हमारे पास नीचे हियर आर सम मोर ऑप्शंस यू कैन सी हियर चिल्ड्रन। इसके नीचे हमारे पास जो ये वाला एरिया है इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा है इसको तो हमने टाइटल बार बोला, यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टाइटल बार। फिर ये टैब्स है, जैसे मैंने बताया फाइल टैब, फाइल को हम वर्ड पैड बटन कहते हैं, फाइल को या फिर हम फाइल बटन कह सकते हैं, वर्ड पैड बटन या फिर फाइल बटन कह सकते हैं। होम को और व्यू को हम टैब्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो टैब्स। होम टैब वी कैन से व्यू टैब। और क्विक एक्सेस भी मैंने आपको बता दिया, डू अंडू और रीडू इसके अंदर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा चिल्ड्रन हियर जो टूल्स होते हैं, ये सारे टूल्स है, दीज आर द टूल्स व्हेन वी सेलेक्ट डिफरेंट टैब्स वी हैव डिफरेंट टूल्स। जब हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास न्यू होता है, ओपन होता है, देन वी हैव सेव एज, प्रिंट, और भी ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब हम होम पे करते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें जो ये है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। और ये सारी चीज़ों को यूज़ करके वी राइट और टाइप इन द टाइपिंग एरिया। ये हमारा टाइपिंग एरिया है, दिस इज़ आर टाइपिंग एरिया। यहाँ पे हम टाइप करते हैं, यहाँ से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, जो कि जिसे हम रिबन कहते हैं। दिस स्ट्रिप इज़ नोन एज रिबन, जिसको हम पहले टूल बॉक्स कहते थे, अभी हम उसको रिबन कहते हैं। सो हियर इज़ द रिबन, पहले हम इसको टूल बॉक्स कहते थे। और इसमें से ही हम टूल्स को लेकर के अपने वॉट एवर वी वर राइटिंग उसमें अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ करते थे एज पर द नीड। सो दिस रिबन हैज़ डिफरेंट टूल्स। उसके बाद चिल्ड्रन ये जिसको मैंने अभी आपको बताया, दिस इज टाइपिंग एरिया, इसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। पहले हम इसको टाइपिंग एरिया कहते थे, एंड नाउ जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें हम इसको इंसर्शन एरिया कहते हैं। इंसर्ट करना यानी कि डालना, और क्योंकि हम इस एरिया में टाइप करते हैं वॉट एवर वी टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड वो लिखाता है, इसलिए हम इसको इंसर्शन एरिया कहते हैं। INSERTION, इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन एरिया कह सकते हैं पूरे को। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे कि हमारा कर्सर होता है, दिस इज़ आर कर्सर एंड द पोजीशन ऑफ द कर्सर इज कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट। तो पूरे एरिया को हम इंसर्शन एरिया कह सकते हैं या टाइपिंग एरिया कह सकते हैं। और जो पॉइंट जहाँ पे कर्सर होता है उसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। तो वॉट एवर वी टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड वहीं से लिखना शुरू होता है, इसलिए हम इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। वॉट एवर वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड अबाउट चिल्ड्रन। टाइटल बार सबको पता है, सबसे ऊपर वाला द टॉप मोस्ट बार शोज़ द नेम ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट हमने खोला है उसका नाम शो करता है। अगर नाम हमने नहीं दिया है तो अनटाइटल्ड वर्ड पैड देगा या अनटाइटल्ड करके प्रोग्राम का नाम देगा। तो द टॉप मोस्ट बार शोज़ द नेम ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किया हो उसका नाम दिखाएगा। तो सबसे ऊपर वाले, टॉप मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला बार, शोज़ द नेम ऑफ द डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट। उसके बाद
क्विक एक्सेस टूल बार भी मैंने बताया, क्योंकि इन द प्रीवियस चैप्टर चिल्ड्रन व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट पेंट, जब हम पेंट के बारे में पढ़े थे तब भी मैंने आपको बोला था कि ये जो क्विक एक्सेस टूल होता है जो इजीली एक्सेस हो जाता है और फटाफट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें हमारे पास सेव का ऑप्शन होता है, अनडू होता है, रीडू होता है, जिसमें हम फिर से किसी चीज़ को वापस रिगेन कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, जो भी हमने अभी किया है उसको वापस हम ला सकते हैं, उसके बाद फिर से कर सकते हैं, या फिर हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो सेव करना हो प्रोग्राम को, अनडू करना हो, रीडू करना है, तो हम क्विक एक्सेस टूल बार को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में टाइटल बार पे ही होता है, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में ही ये क्विक एक्सेस बार होते हैं। देन क्विक एक्सेस टूल्स होते हैं। देन वी हैव चिल्ड्रन वर्ड पैड बटन। एज आई टोल्ड यू, फाइल को हम कहते हैं वर्ड पैड बटन या फिर हम फाइल टैब भी कहते हैं। तो ऑन दिस बार चिल्ड्रन वी हैव 3 टैब्स। वन इज फाइल टैब इज नोन एज फाइल टैब और वर्ड पैड बटन, और it displays menu of the file commands such as new or open। ये new, open, save, print ये सारे कमांड्स को डिस्प्ले करता है। टैब का मतलब होता है होम, व्यू। होम एंड व्यू आर 2 टैब्स इन वर्ड पैड। जो होम और व्यू होते हैं ये 2 पैड होते हैं वर्ड पैड के। होम और व्यू 2 बटन्स होते हैं या टैब्स होते हैं वर्ड पैड के, एंड दीज आर जस्ट बिसाइड द फाइल टैब। उसके बाद रिबन एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, रिबन को पहले हम टूल बॉक्स कहते थे, अब इट इज़ नोन एज रिबन। इट डिस्प्लेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब। तो यहाँ पे एक दूसरे से मिलते जुलते बहुत सारे ऐसे टैब्स होते हैं, एंड ईच टैब ऑफर्स शॉर्टकट बटन ऑफ कमांड टास्क। तो उसके साथ उनके शॉर्टकट बटन्स भी होते हैं। शॉर्टकट बटन का मैंने मतलब आपको बताया है, बटन विच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड। हमको को प्रोग्राम में से नहीं हम उसको यूज़ करते हैं, हम उसको कीबोर्ड से भी कंट्रोल के साथ प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट बटन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको रिबन में मिलेगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो जहाँ पे कर्सर होता है। कर्सर होने का मतलब है कि वो पॉइंट जो भी चीज़ हम इंसर्ट करेंगे यानी टाइप करेंगे वो कर्सर पॉइंट से ही हमको लिखी हुई दिखाई देगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इंसर्ट करना, टू किसी चीज़ को डालना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम डालते हैं या टाइप करते हैं उसको हम इंसर्शन पॉइंट से ही लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इट इज़ अ फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन वेयर यू टाइप द टेक्स्ट। वो एरिया होती है या वो पार्ट होता है स्क्रीन का जहाँ पे हमको फ्लैशिंग लाइट दिखाई देती है, एंड दिस फ्लैशिंग लाइट इज़ द वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन विच इज़ नोन एज कर्सर। तो जहाँ से हम जो भी टाइप करते हैं वो वहीं से लिखना शुरू होता है। तो दिस इज़ ऑल with the features of all these are the features of the WordPad window। तो ये सारे फीचर्स है WordPad विंडो के। और जो वाइट प्लेन एरिया है उसको हम इंसर्शन एरिया कह सकते हैं। वैसे एज सच इंसर्शन एरिया नहीं कहा दिया नहीं है, लेकिन हम उसको कह सकते हैं क्योंकि उस एरिया में हम जो भी टाइप करते हैं वो सारी वही लिखाता है, या फिर हम उसको टाइपिंग एरिया कह सकते हैं। सो टाइपिंग एरिया में हम जो भी इंसर्ट करते हैं कर्सर के पॉइंट से वो सब हमें वहीं पे दिखाई देता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ वर्डपैड विंडो। सो चिल्ड्रन, अब नाउ एंटरिंग द टेक्स्ट। सो एंटर कैसे करेंगे? यू कैन एंटर द टेक्स्ट with the help of keyboard. As I told you children कि whatever we insert in the computer it is inserted, या जो भी हम टाइप करके इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में वो सारी चीज़ें हम कीबोर्ड को यूज़ करके ही करते हैं। सो द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। सो वॉट एवर टेक्स्ट यू वॉन्ट टू एंटर इन टू द कंप्यूटर इज एंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड। उसे हम कीबोर्ड को यूज़ करके ही एंटर करते हैं। नाउ the text you type will appear where the insertion point flashes on your screen, ठीक है। So as I told you कि this is the insertion point। तो whatever you type from the text will be inserted from the
इंसर्शन पॉइंट ओनली, तो वहीं से आप लिखेंगे उन सारी चीज़ों को जहाँ पे इंसर्शन पॉइंट होगा। इंसर्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें वर्टिकल कर्सर डिस्प्ले होता है, जहाँ पे वी कैन सी द वर्टिकल स्मॉल vertical line which is known as cursor. So children, this is the feature of our these are the feature of our WordPad window. I hope children you all have understood. We will discuss this once again in our online classes by sharing the screen, and so that you can understand it in the better way. So children, this is all for today. Go through the chapter, read the chapter, and if you have any difficulty in understanding any word or the meaning, you can ask in online classes. So children, take care and thank you. Have a nice day ahead.